This is the Delhi station of All India Radio. Please stand by for our next broadcast. You will now listen to the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. ये आकाशवाणी है। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 141। श्री बाला शौरी। Question number 141 by Shri Balashauri Vallabhaneni. Will the Minister of Railways be pleased to state A. Whether an amount of Rs 1681 crores have been allocated in the budget of 2022-23 for the Vijayawada, Gudivada, Machilipatnam, Bhimavaram, Narasapuram, Nidadavolu railway line doubling and electrification work. B. If so, the details thereof along with the total amount required for completion of the above works. C. The details of budget allocated, spent and work completed on the above project since the approval of this project in 2011-12. And D. The time by which the above project is likely to be completed. Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways. It is laid on the table, sir. sir, as per your written reply, total amount of 4,160 crores for the total length 221 kilometers has been taken up and doubling work is fully completed and only 40 kilometers electrification is pending. I am thankful to Honorable Minister in this. Sir, Machilipatnam is a district headquarters of my parliamentary constituency. Since the line capacity has increased after doubling and electrification, there is a long pending demand of devotees for a direct train from Machilipatnam to Tirupati. There are thousands of devotees are going to Tirupati daily from Machilipatnam to Tirupati, sir. In absence of direct train, devotees are suffering a lot. In this regard, I had also met Honorable Minister and explained how important is this. So I would like to know from the Honorable Minister whether the Minister is considering to start direct train from Machilipatnam to Tirupati. Manya Adhyakshi, Honorable Member has asked about, the question was about the doubling and electrification of this track, which we have replied, and regarding the direct train from Machilipatnam to Tirupati, the decisions about all new trains are taken based on the capacity of the track. So in the next zonal timetable meeting, the Honorable MP or his representative can be present, and apart from that, I'll also request Honorable MP to come and meet me in the office. If there is good capacity available in that area, then we will definitely take a look at this. Sir, my second supplementary is, apart from this line, Vijayawada, Gudivada and Gudivada Machilipatnam line, now line between Machilipatnam to, new line between Machilipatnam to Repalla is also long pending demand from this area, particularly people from Divisima. Machilipatnam is planned to come up in big way. If Machilipatnam Repalla new line is laid, it will help in movement of traffic from proposed port to southern side without passing through congested Vijayawada. This will not only shorten almost 50 kilometers, but also save the time and energy also, sir. Sir, since it is an important viable project, will Minister is going to agree for this one? And if it is, no, how much time it will take to complete this project? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, the new projects are mostly taken on cost sharing basis. I would like to bring to your kind notice
that in Andhra Pradesh alone, about 70,000 crore worth projects are undergoing right now, but somehow the state government has not been able to give its share of the cost of the project, and the pending cost is now 1,798 crore amount is pending on the cost sharing basis. Under such circumstances, it is probably very difficult to take up any new project. I will request you through your good officer and through the Honorable MP's office, if the state government can be convinced to give its share of the cost for the existing projects, then it will be real big help. Then we can really expedite the projects in Andhra. Question number 142, Sri Jagdiba Pal. Question number 142 by Sri Jagdambika Pal. Will the Minister of Coal be pleased to state A. Whether the government has taken any new initiative to check the shortage of coal in the country for proper functioning of thermal power stations, B. If so, the details thereof, and C. The steps taken by the government to control the shortage of coal in the country. Shri Prahlad Joshi, Minister of Coal. It is laid on the table of the House, sir. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में ये कहा है कि इस समय भारत में कोई कोयले की शॉर्टेज नहीं है। तो मैं एक तरफ माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि 2020 और 21 की तुलना में 716.083 मीट्रिक टन से 2021-22 में 778.19 मिलियन टन का प्रोडक्शन बढ़ा है। लेकिन जहां माननीय मंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कि प्रोडक्शन देश में कोयले का बढ़ा है, तो कोयले की डिमांड्स भी बढ़ी है। आज कोयले की डिमांड 2019-20 में 956 मिलियन टन की थी, जो 2020 और 21 में 1,227 मिलियन टन की डिमांड बढ़ गई। तो जहां प्रोडक्शन बढ़ रहा है वहां पे डिमांड भी बढ़ी है, और दूसरी तरफ कोल इंपोर्ट भी कम हो रहा है। 2019-20 में आपने 248 मिलियन टन का आपने इंपोर्ट किया था, 2021 में घट करके वो 2015 मिलियन टन रह गया, और 2021-22 में वो और घट के 2009 मिलियन टन रह गया। तो एक तरफ कोल इंपोर्ट भी आप कम कर रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी तरफ डिमांड जो बढ़ रही है, वो आपने तय किया था कि 2023-24 तक हम 1,200 मिलियन टन का प्रोडक्शन करेंगे। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की भी रिपोर्ट है फरवरी 22 की। तो जब एक तरफ आप ये 1200 मिलियन टन का प्रोडक्शन ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? क्योंकि आज पिछले दिनों जिस तरीके से कोयले के उत्पादन की शॉर्टेज के कारण बिजली के उत्पादन के समक्ष एक संकट पैदा हो रहा था, तो ऐसी परिस्थितियों में जो आज डिमांड है उसके सापेक्ष उत्पादन को बढ़ाने की क्या कार्रवाई मंत्रालय कर रहा है? सर, मेंबर ने बहुत विस्तार से प्रश्न पूछा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोल इंपोर्ट घट गया है और कोल का ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। उनका स्पेसिफिक प्रश्न है कि कोल प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए, कोल डिस्पैच ज़्यादा करने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं। एक तो कोल इंडिया मैकेनाइजेशन वगैरह तो बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, और हमारा कोयला का प्रोडक्शन भी अगर इसी क्वार्टर का देखें तो हमारा नॉर्मली अप्रैल मई जून में हमारा लास्ट टाइम भी हुआ था 156 मिलियन टन। इस बार हुआ है यही 3 महीने में 204.9 मिलियन टन, ऑलमोस्ट 205 मिलियन टन हमारा उत्पादन ज़्यादा हुआ है। मीन्स इस पहले 3 महीने में हमारा 31% ज़्यादा हुआ है। इसके साथ ही साथ हम कमर्शियल कोल माइनिंग जो हमने 20 में ऑपरेशनलाइज किया है ऑलरेडी, उसका भी प्रोडक्शन आना शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ हमारा जो अबंडेंट कोल माइन है, किसी न किसी कारण जो कोल इंडिया हो और कोई कोल इंडिया, स्पेशली कोल इंडिया, जहां उत्पादन बंद करके रखा है,
क्योंकि उधर कुछ कारण है पीएसयू हैंडल नहीं कर सकते। ऐसे स्थिति में वो प्राइवेट को देके उधर से भी हम कोयला उत्पादन करने के लिए हमने ऑक्शन प्रक्रिया शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है वो भी 2-3 वर्ष में उसका प्रोडक्शन भी आ जाएगा। 2-3 वर्ष में नहीं, कई प्रोडक्ट में बहुत जल्दी ही प्रोडक्शन आ जाएगा। और जो हम कैप्टिव के लिए ऑलरेडी दिए हुए थे 15 से, जो हम एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया था, वो जो हमने अभी ट्रांसपेरेंट तरीके से अब कैप्टिव को दिया था, वो कैप्टिव वाले को भी हम 50% सेल करने के लिए अलो किया है। वो कुल मिला के हमारा प्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे पहले ही भी कहा था, तो अगर आप 14 के कंपैरिजन करते हैं तो 577 मिलियन टन से आज हमारा हुआ है 820 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। तो इसीलिए प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत विश्वास है जो हमने 23-24 कहा था, कोविड के कारण हम 24-25 तक कोल इंडिया का प्रोडक्शन भी हम 1 बिलियन टन कर रहे हैं। और जहां तक इंपोर्ट का सवाल है, इंपोर्ट के मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सिर्फ थर्मल कोल इंपोर्ट नहीं होता है, इंपोर्ट मेटलर्जिकल कोल, कोकिंग कोल भी इंपोर्ट होता है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को कि वो अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं कोविड के नाते 1 साल। लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 2022-23 में जो अप्रैल 22 से जून 22 तक मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑल इंडिया एवरेज गैप बिटवीन द एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड एनर्जी सप्लाई वाज ओनली 1%। मे बी परसेंट वाइज इट इज ओनली 1%, बट वास्तविक रूप से जो हमारे पावर जनरेशन के पावर प्लांट थे, उनके सामने आपको भी रिपोर्ट आई होगी कि कई ऐसे कोयला उत्पादन यूनिट थी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की, कि उनके पास 3 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का ही कोयला बचा हुआ था। परसेंटेज से उन्होंने कहा ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कि 1% ही गैप है, लेकिन वास्तविक रूप से सभी पावर स्टेशन के या पावर हाउसेज के पास कोयले की कमी थी। इसके नाते सरकार ने एक इंपोर्ट करने का भी फैसला किया था। तो हम जानना चाहते हैं कि वेदर द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू रीओपन closed coal mines in the country to meet the demand for thermal power stations producing electricity in the state, if so the details thereof। कि अगर कोयले का उत्पादन आप बढ़ाना चाहते तो जो बंद पड़ी हुई हैं उनको फिर से चलाने के लिए सरकार का कोई है नीति? ऑलरेडी मैंने कहा हूं सर, अबंडेंट कोल माइंस हमने ऑक्शन में ऑलरेडी दे दिया है और उसका ऑक्शन प्रोसेस प्रक्रिया चल रहा है, बिडिंग भी हो रहा है, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमारा प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, और आगे वाले इस बरस में भी हमारा कम से कम हम वी आर ट्राइंग टू रीच, आई एम मेकिंग माई स्टेटमेंट वेरी कॉशियसली, वी आर ट्राइंग टू रीच द डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन अप टू 900 मिलियन टन एंड नेक्स्ट ईयर वी आर ट्राइंग टू रीच इट अराउंड 1000 मिलियन टन। हमारा प्रोडक्शन अबंडेंट माइन पे हो रहा है और कमर्शियल कोल माइनिंग का भी हमारा प्रोडक्शन शुरू हो गया है और तेजी से अभी पकड़ रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। ये सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है और आपके द्वारा बनाए गए नियम प्रक्रियाओं के अंदर जो आपने बनाया है, सदन ने बनाया है, 349 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी सदस्य माननीय बेल में आकर नारेबाजी और तख्तियां लेकर नहीं आए। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि नियम प्रक्रियाओं की पालन करें, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आए। ये सदन आपका है। अगर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आप चर्चा करें, संवाद करें, बातचीत करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सरकार से आप सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन आप नारेबाजी कर रहे हैं।
और जिस तरीके से अशोभनीय व्यवहार कर रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं कि मुझे आपके द्वारा बनाए गए नियम प्रक्रियाओं की पालना करनी पड़ेगी। सब माननीय सदस्यों को मैं मौका देता हूं, पर्याप्त समय देता हूं, लेकिन माननीय सदस्य जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, ये संसदीय लोकतंत्र के उचित भी नहीं है और आपके व्यक्तिगत रूप से एक जनप्रतिनिधि के नाते आपके लिए उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप विराजें। संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्राइस राइज के बारे में वो बात करना चाहता है, माननीय वित्त मंत्री जी आज पहुंच चुके हैं। She has reached the parliament after recovering from the COVID. अगर आप आज निर्णय लेते हैं तो आज भी हम प्राइस राइज पर चर्चा करने के लिए तैयार है सर। ये लोग जिन अपोजिशन के यूपीए के और कई अपोजिशन पार्टी जहां रूलिंग में है स्टेट में, वो उनका जो फ्यूल का टैक्स वगैरह नहीं घटा है, इसके कारण वो चर्चा से भागना चाहते हैं। हम वित्त मंत्री हम सबके शुभकामनाओं के साथ और भगवान के आशीर्वाद के साथ पूरा स्वस्थ होकर पार्लियामेंट पहुंचे हुए हैं। हम चर्चा करने के लिए आज अगर आप निर्णय कर तो अभी हम तैयार हैं। कृपया सदन चलाने के लिए मौका दे, मैं इतना ही प्रार्थना करता हूं सर। सभा की माननीय सदस्यगण, संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है, आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। प्रश्नकाल के बाद आपकी सबसे चर्चा की जाएगी, लेकिन इस तरीके से आपको इस लोकतंत्र के मंदिर में आपका उचित व्यवहार नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूं, देश की सभी राज्य की विधानसभाएं और सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं इस उच्च सदन के आपके आचरण व्यवहार को देख रही है और उनका कहना है कि जिस तरीके से सर्वोच्च संस्था के अंदर माननीय सदस्य आचरण कर रहे हैं, ये आपका आचरण उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, अपनी अपनी सीट पर विराजें और नियम प्रक्रियाओं की पालना करें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोक sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.